Yes, children, let's start now. In the earlier video, we have discussed about the electromagnetic induction, Faraday experiments, and observations of the Faraday experiment, induced current, induced EMF, etc., etc. All these things we have discussed. ठीक है, ये फेराडे एक्सपेरिमेंट थे जिनको हम एक्सपेरिमेंट्स ऑफ फेराडे एंड हेनरी कहते हैं, क्या क्या इनकी ऑब्जर्वेशंस थी. अब हम देखिए इसमें ले रहे हैं फेराडेज लॉज. व्हाट आर फेराडेज लॉज? Basically, laws are nothing but these are the observations of the experiment performed by Faraday and Henry. जो भी एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशन है उनको आप एक फॉर्मुलेट कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ लॉज, आइदर मैथमेटिकल और थ्योरेटिकल. उनको हम फेराडेज लॉज कहते हैं, फेराडेज लॉज. एंड देयर आर टू लॉज गिवन बाय फेराडे ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन. द फेराडे हैव गिवन Faraday has given two laws. First one is first law, Faraday's first law. First law. It states that whenever there is a change in magnetic flux linked with a coil, EMF is induced in that coil, and which continues till the change in magnetic flux occurs. देखिए एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन भी आपने पढ़ी थी. जब हम किसी भी कॉइल से लिंक्ड एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करते हैं तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है. और कब तक वो ईएमएफ इंड्यूस होता है? टिल द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स अकर्स. जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा तब तक ईएमएफ इंड्यूस होगा. जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना बंद होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होना भी बंद हो जाएगा. So this EMF induced is due to the change of magnetic flux. So this observation is stated in the first law. Now come to second law. Now we come to second law. It is a mathematical law. देखिए हमने एक ऑब्जर्वेशन पढ़ी थी. faster the motion of the magnet toward the coil or away from the coil, more EMF is developed in the coil because more deflection occurs in the galvanometer. So not only EMF induced not only depends on change of magnetic flux, but also it depends on how rapidly this change of magnetic flux occurs. तो कितनी रैपिडली, कितना फास्ट चेंज होता है मैग्नेटिक फ्लक्स में, इस बात पर भी डिपेंड करता है. तो यहाँ सेकंड लॉ है बच्चों, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ coil is directly proportional to rate of change of magnetic flux. Rather negative rate of change. I must write negative rate. अभी बताएंगे नेगेटिव हमने क्यों ऐड किया इसमें. Negative rate of change of magnetic flux linked with that coil. If phi1 is magnetic flux linked with the coil at time t1, phi2 is magnetic flux at time t2 through the same coil. So magnetic flux changes from phi1 to phi2 when time changes from t1 to t2. Then induced EMF E proportional to minus phi2 minus phi1 upon t2 minus t1. Or we can write E is equal to minus k phi2 minus phi1 upon t2 minus t1. And if phi2 minus phi1 can be written as minus k delta phi upon delta t, it is equation number 1. Here k is 1. In all systems of units, यहाँ k की वैल्यू 1 होती है, whether it is a SI system or CGS system, then you can write, so E is equal to minus delta phi upon delta t. It is equation number 2. So one law is this one, another law is this one, both are the same law. When you remove proportionality sign by the sign of equality, then a constant is required, then you give the value of the constant. What is this k? K is the proportional constant whose value is 1. जिसकी वैल्यू 1 होती है. तो इस तरीके से ये एक फॉर्मूला बन गया बच्चों, E इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी.
and if phi is or delta phi is change of magnetic flux या डेल्टा टी ले लीजिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स linked with each turn of a coil, then total magnetic flux coil of n number of turns. अगर कोई coil आप ले रहे हैं जिसमें number of turns कितने हैं, n है, and what is flux associated with each turn, that is delta phi, and what is rate of magnetic flux, change of magnetic flux, delta phi upon delta t, then total magnetic flux linked with the coil that E is equal to minus n delta phi upon delta t. This is another formula. So systematically just we have developed a formula. First of all, we have defined what is this induced EMF, on what factors it depends. Not only depends on change in magnetic flux, but also it depends on rate of change of magnetic flux. So it has been observed that Faraday observed that the induced EMF in a coil or in a circuit is proportional to negative rate of change of magnetic flux. And if delta phi is the change of magnetic flux in delta t time, then E can be written as minus k d phi by dt, and when proportionality constant has value 1, then E becomes minus delta phi by delta t. And if delta phi upon delta t, the rate of change of magnetic flux linked with each turn, ये तो सिंगल टर्न कॉइल नहीं है, यू हैव लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, कॉइल n नंबर ऑफ टर्न्स आर देयर, तो एक टर्न का कितना है, डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, n नंबर ऑफ टर्न्स में कितना EMF इंड्यूस होगा, तो n डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी हो जाएगा. और अगर इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लें, इन डिफरेंशियल फॉर्म, बताइए डिफरेंशियल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू माइनस n डी फाई बाई डी टी, या तो ये लिख सकते हो पहले आप, अगर इस वाले फॉर्मूले को लिखेंगे तो ये वाला लिख सकते हैं. एंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, इफ अगेन फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, E is equal to minus n d phi by dt. So this is the basic difference between these two equations. If delta phi is the total rate of change of magnetic flux linked with the coil, then it will be equal to minus delta phi by delta t. If delta phi by delta t is the rate of change of magnetic flux linked with each turn or one turn, and the coil has n number of turns, then you multiply it by n in differential form. Delta phi by delta t can be written as d phi by dt. So this is the negative rate of change of again magnetic flux d phi by dt in the differential form, और ये भी delta phi by delta t है. Small change in magnetic flux in corresponding small time, that is d phi by dt. ये induced EMF का formula हो गया बच्चों. I think it is clear to everybody. अब हमें induced EMF तो समझ आ गया क्या होता है induced EMF, कितना इसका फॉर्मूला बनेगा, क्या इसका मैग्नीट्यूड है, नेगेटिव साइन क्या सिग्निफाई करता है. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव साइन. आई होप बोथ दीस लॉज आर क्लियर. ये तो बिल्कुल ही एक्सपेरिमेंटल की जो पहली दो ऑब्जर्वेशंस थी वो होगी बच्चों, इसको हमने थ्योरेटिकली लिख दिया. देयर आर टू ऑब्जर्वेशंस वी हैव जस्ट मर्ज्ड इन फर्स्ट लॉ, एंड दिस इज मैथमेटिकल लॉ. ये मैथमेटिकल लॉ बन गया, दोनों एक्सपेरिमेंट से लॉ बने हैं. सो दीज आर द बेसिकली फॉर्मुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस. Come to next. Now we are going to discuss this physical significance of negative sign. ये negative sign क्या बताता है, देखिए अब इस negative sign की हम बात करते हैं. When you take E is equal to either minus d phi by dt or minus n delta phi by delta t, both are the same thing. ये दोनों फॉर्मूले आपके सामने लिखे हैं और इन्हीं फॉर्मूले को हम आगे बढ़ाते हैं. Now induced EMF E is equal to minus delta phi upon delta t और E is equal to minus d phi by dt. ये दो फॉर्मूले, दोनों सेम फॉर्मूले बनते बच्चों. अब इसमें नेगेटिव साइन क्या शो करता है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द EMF induced is such that it opposes the change of magnetic flux. ये जो E है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज करेगा, और रेट ऑफ चेंज का मतलब होगा चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज करेगा. अब चेंज कितने तरह का होता है, दो तरह का चेंज हो सकता है. एक चेंज तो है कि भैया पॉजिटिव चेंज है, पॉजिटिव चेंज को क्या कहते हैं, इंक्रीज कहते हैं. मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है. क्या एग्जांपल हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने का, देखो ये एग्जांपल हो सकता है. अगर मान लीजिए ये कोई कॉइल है
और ये कोई बार मैग्नेट है, ये ऐसे जा रहा है, देखिए बार मैग्नेट इसकी तरफ मूव कर रही है, तो बताइए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगे कि नहीं? तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है? इंक्रीज करता है। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा? B × A। तो बताइए मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? बढ़ेगा। तो वन केस इन विच द मैग्नेटिक फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, ठीक है। एंड सेकंड केस, व्हेन नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट और साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट इज गोइंग अवे फ्रॉम द कॉइल, when it is moving away from the coil, the number of magnetic field lines passing through this coil goes on decreasing. In this case, magnetic flux decreases because magnetic field is decreasing. So magnetic flux change means either it increases or it decreases. And when magnetic flux changes, the EMF is induced in it. So what is the cause of induced EMF? Magnetic flux. The direction of induced EMF will be such that it will oppose this. क्या किसका अपोज करता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ता है तो ये ईएमएफ इंड्यूस उसका अपोज करेगा, और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स कम होता है तो इसकी जो डायरेक्शन होगी इंड्यूस ईएमएफ की, वो उसके कम होने का अपोज करेगा। तो यानी कि चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का जो अपोज करता है, अगर इंक्रीज करता है मैग्नेटिक फ्लक्स तो इंक्रीज करने का अपोज करेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो डायरेक्शन होगी, और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज करता है तो इंड्यूस्ड जो ईएमएफ है वो डिक्रीज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का भी अपोज करेगा। जैसे अभी आपने बताया मैग्नेटिक इधर जा रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है कि नहीं? तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ा, तो इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा इस मैग्नेटिक फ्लक्स के बढ़ने का अपोज करेगा, वो डायरेक्शन होगी। और अगर ये दूर जा रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है? डिक्रीज करता है। अब जो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा वो अब दूर जाने का अपोज करेगा, यानी कि चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का या डिक्रीज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या करेगा? अपोज करेगा। सो ये डायरेक्शन इंडिकेट करता है। तो बेसिकली नेगेटिव साइन की सिग्निफिकेंस क्या है? नेगेटिव साइन गिव्स डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन किसकी? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन बताता है। क्या डायरेक्शन होगी इंड्यूस्ड ईएमएफ की, ये हमें इससे पता चलता है। तो हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ का आपने फॉर्मूला पढ़ा, इंड्यूस्ड ईएमएफ का ये मैग्नीट्यूड होगा और ये इसकी डायरेक्शन होगी। अच्छा, डायरेक्शन का हम एक रूल और बताते हैं। ये तो थोड़ा चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स अपोज करना हुआ। एक और साइंटिस्ट हुए, उन्होंने डायरेक्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई तरीके से समझाया। हालांकि दोनों से डायरेक्शन सेम आएगी, आप इससे निकालेंगे तब भी सेम आएगी। अभी हम उसको प्रूव भी करेंगे कैसे सेम आएगी। अब दूसरा लॉ है, एक और साइंटिस्ट हुए हैं, उनका नाम है लेंज। उन्होंने एक लॉ बनाया और वो लॉ केवल डायरेक्शन बताता है। तो नाउ वी कम टू लेंज लॉ। लेंज लॉ, अच्छा, फैराडे लॉ में जो नेगेटिव साइन था वो डायरेक्शन बताता था, लेंज ने केवल डायरेक्शन का लॉ बताया। देखिए क्या लॉ, कैसे सिंप्लीफाई किया इन्होंने। इट स्टेट्स दैट द ईएमएफ इंड्यूस्ड in a coil is such that it opposes the cause due to which it is developed। अब देखिए इन्होंने क्या कहा, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाया कि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो तो हमें समझ आ गया। ईएमएफ इंड्यूस कब होगा? जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। किसके इक्वल होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के इक्वल होगा। क्या डायरेक्शन होगी ये भी हमें बताना है। किस डायरेक्शन में इंड्यूस करंट होगा, किस डायरेक्शन जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है वो किस डायरेक्शन में करंट को फ्लो कराएगा, ये हमें पता करना है। तो लेंज ने कहा कि जो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा वो क्या करेगा? दैट विल अपोज द कॉज ऑफ ड्यू टू विच इट इज प्रोड्यूस्ड और डेवलप्ड। जिस कारण से ईएमएफ इंड्यूस हुआ है उसी कारण का अपोज करेगा, वो डायरेक्शन होगी। अब जरा इसको समझते हैं कैसे अपोज करेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, बहुत सिंपल तरीके से समझाते हैं। ये हमने एग्जांपल लिया था और ये हमने कॉइल का हमने ये कहा था इसमें। अच्छा देखिए, अभी हमें डायरेक्शन का आइडिया नहीं है। चलिए डायरेक्शन हम अभी निकालेंगे। फाइन, ये नॉर्थ पोल है और ये कौन सा पोल है? साउथ पोल है। ये नॉर्थ पोल मान लीजिए और ये आप साउथ पोल मान लीजिए। एक कोई भी केस लेते हैं वो समझ लीजिए, बाकी सारे केसेस समझ आ जाएंगे। ये कोई कॉइल है और आप कहते थे इसमें करंट इंड्यूस होती है, डिफ्लेक्शन भी आता है इसमें। अब डिफ्लेक्शन आता है, आपको ये बताना है कि इसमें डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन होगी क्या। ये आपने गैल्वेनोमीटर लगा दिया। अब इस गैल्वेनोमीटर में ये आपको बताना है व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। कैसे करंट की डायरेक्शन आप फाइंड करेंगे, अप्लाई करते हैं इस लॉज को। देखो, जब ये इधर पास में आएगा तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी और बढ़ेंगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा और ईएमएफ इंड्यूस होगा तो सर्किट क्लोज है तो करंट भी इंड्यूस हो जाएगा। और करंट की डायरेक्शन क्या होगी? वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट। जब आप करंट की डायरेक्शन निकालेंगे, कॉज क्या है, जरा कॉज देखिए। डायरेक्शन होनी चाहिए इट विल अपोज द कॉज। कॉज क्या है? मोशन ऑफ द मैग्नेट। कौन सा मोशन ऑफ द मैग्नेट? नॉर्थ पोल।
सो नॉर्थ पोल इज अप्रोचिंग द कॉइल, नॉर्थ पोल कॉइल की तरफ आ रहा है। अब नॉर्थ पोल के कॉइल की तरफ आने का कौन अपोज कर सकता है? वो अपोज कर सकता है अगर यहां पर कौन सा पोल डेवलप हो जाए, नॉर्थ पोल डेवलप हो जाए। ये हम जानते हैं नॉर्थ नॉर्थ को क्या करता है, रिपेल करता है। तो अगर ये कोई कॉइल है और इस कॉइल के पास ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल ऐसे आ रहा है, तो नॉर्थ पोल का अपोज तब कर सकता है जब इस एंड पे नॉर्थ पोल डेवलप हो जाए। और अगर नॉर्थ पोलरिटी डेवलप हो जाएगी तो ये नॉर्थ पोलरिटी इस नॉर्थ पोल का क्या करेगी, रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो मोशन का अपोज हो जाएगा। और बताइए नॉर्थ पोलरिटी कब डेवलप होती है, जब डायरेक्शन कैसा होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो बहुत फंडामेंटल तरीके से हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर ये कोई कॉइल है और ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, मान लीजिए ये नॉर्थ पोल है और ये इधर आ रहा है, तो यहाँ इस एंड पर कौन सा पोल डेवलप होगा, नॉर्थ पोल डेवलप होगा। नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा, कॉज है मोशन, मोशन का अपोज हो जाएगा। और जब नॉर्थ पोल होता है तो हमने पढ़ा है डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज होती है। इट मींस डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से इसमें करंट की डायरेक्शन फ्लो करेगी, ये डायरेक्शन आएगी। ठीक है, आसानी से समझ आया। चलिए दूसरा केस लेते हैं। फिर अगेन यही आप कॉइल ले लीजिए, सेम कॉइल यू है, ये आपने गैल्वेनोमीटर लिया यहाँ पर, और ये आपने मैग्नेट ले लिया। ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, आप दूर लेके जा रहे हैं। व्हेन दिस मैग्नेट इज अवे, moving away, then what will happen? This is the coil and magnet is going away. अब बताइए कॉज क्या है, अगेन मैग्नेटिक फ्लक्स विल चेंज, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल डिक्रीज, तो मैग्नेटिक फ्लक्स विल डिक्रीज। और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा मींस चेंज होगा, तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। और अगर ईएमएफ इंड्यूस होगा तो कॉज क्या है, मैग्नेट का मोशन है। अब मैग्नेट के मोशन का अपोज करेगा। ये जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ इस कॉइल में, ये इस मैग्नेट के मोशन का अपोज करेगा। अब बताइए मैग्नेट किधर जा रहा है, दूर जा रहा है। कौन सा पोल दूर जा रहा है, नॉर्थ पोल दूर जा रहा है। अब नॉर्थ पोल अगर दूर जा रहा है तो दूर जाने का अपोज कब हो सकता है, जब इसमें अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। और अट्रैक्टिव फोर्स कब लगेगा, हम जानते हैं कौन सा पोल अट्रैक्ट कर सकता है, साउथ पोल अट्रैक्ट कर सकता है। हम तो ये जानते हैं साउथ पोल नॉर्थ पोल को हमेशा क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो अगर ये मैग्नेट दूर जा रहा है, इसमें उसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है, तो इसमें साउथ पोल डेवलप होना चाहिए अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। और साउथ पोल नॉर्थ पोल को क्या करेगा, कि दूर जाने का अपोज करेगा, यानी कि अट्रैक्ट करेगा। आप इसको दूर लेके जा रहे हैं, इसमें ईएमएफ डेवलप हुआ, दूर जाने का अपोज कर रहा है, अट्रैक्ट करेगा। और अट्रैक्ट करेगा तो कौन सा पोल बना, साउथ पोल बना। और साउथ पोल में बताओ ये हमने क्या तरीका बताया था, कौन सी डायरेक्शन है करंट की, कौन सी डायरेक्शन होगी, क्लॉकवाइज होगी। और जब क्लॉकवाइज करंट की डायरेक्शन आएगी तो डिफ्लेक्शन इधर आएगा, इसमें डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में था, इसमें डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में आ जाएगा। सो इट इज सो सिंपल टू फाइंड द डायरेक्शन of the induced current in the coil due to the motion of the magnet by applying this Lenz law। तो Lenz law ने जो फैराडे लॉ ने बताया था, फैराडे ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था E = माइनस डेल्टा फाई डेल्टा टी। फैराडे ने तो नेगेटिव साइन सिग्निफाई करता है डायरेक्शन को, लेंज ने इस ही लॉ को थोड़ा सिंपल करके बताया कि ये मेथड भी हो सकता है क्या फाइंड करने का, इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड करने का और इंड्यूस्ड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट फाइंड करने का। तो इसमें भी ईएमएफ इंड्यूस हुआ, सर्किट क्लोज है तो करंट डेवलप हुआ, इंड्यूस करंट हो गया, इसमें भी इंड्यूस करंट है। ये इंड्यूस करंट भी कॉज का अपोज करेगा, ये इंड्यूस करंट भी कॉज का अपोज करेगा। तो आप बता सकते हैं कौन सी डायरेक्शन में करंट होगा, नॉर्थ पोलरिटी बनेगी, किस डायरेक्शन में साउथ पोलरिटी बनेगी, क्यों बनेगी। ऐसे ही साउथ पोल से भी आप ले सकते थे। अच्छा, इससे भी यही आता, नेगेटिव साइन क्या सिग्निफाई करता था, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या करता है, अपोज करता है। अब देखिए इसमें बताओ चेंज कैसा है। अगर ये नॉर्थ पोल इस तरह से आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बढ़ रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने से क्या बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स, फाई को क्या बताया आपने, बी ए बताया, बी इंटू ए इन दिस केस, वैसे तो बी ए कॉस थीटा होता है। और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स के बढ़ने का अपोज करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स के बढ़ने का अपोज करेगा। अब मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ किसकी वजह से रहा है, बढ़ रहा है जब इधर से मैग्नेटिक फील्ड की नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही है। तो जितना कॉइल पास में आता है कॉइल के मैग्नेट, उतनी इसमें से ज्यादा लाइंस पास होती हैं। तो इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो इस कंडीशन में होगा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का क्या करेगा, अपोज करेगा। तो यानी कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर जानी चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में जानी चाहिए। नॉर्थ पोल से इधर आएंगी, कॉइल से उधर जाएंगी, और जब कॉइल से उधर जाएंगी तो कौन सी पोलरिटी डेवलप होगी, नॉर्थ पोलरिटी डेवलप होगी। तो यानी कि आप चाहे इस वाले लॉ को अप्लाई करें या लेंज लॉ को अप्लाई करें, यू विल गेट द सेम डायरेक्शन। हाँ, ये लॉ थोड़ा डिफिकल्ट होता है नेगेटिव साइन से हम इंप्लीमेंट करना। तो जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम इसका मैग्नीट्यूड तो निकाल लेते हैं किससे, फैराडे लॉ से, और डायरेक्शन किससे बता देते हैं, लेंज लॉ से बता देते हैं। सो लेंज लॉ सिंप्लीफाइड और इजीली टेल्स अस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, अच्छा, अभी आपने फॉर्मूला बताया इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इंड्यूस्ड करंट, इसी लॉ से अगर आपसे इंड्यूस्ड करंट का फॉर्मूला पूछा जाए तो इंड्यूस्ड करंट कितना होगा,
इंड्यूस करंट। अब तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का लॉ लगा दीजिए, I इज इक्वल टू क्या होता है, E अपॉन R होता है। R क्या होगा, R द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, वेयर R इज रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। अगर कॉइल का रेजिस्टेंस R हो जाए एंड इट इज बेसिकली 1 अपॉन R डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट। और अगर आप E की वैल्यू निकाल रहे हैं नेगेटिव में डेल्टा फाई में, तो यहां भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो नेगेटिव डायरेक्शन इंडिकेट करता है, और अगर नेगेटिव नहीं लगाते हैं तो क्या आता है, मैग्नीट्यूड आता है। दिस इज इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, एंड दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्विवेलेंट टू अ सेल कनेक्टेड इन द सर्किट। अब इसमें ऐसा हो गया है कि इसमें कोई बाहर से आपने सेल कनेक्ट नहीं किया था, कोई भी सेल इसके अंदर नहीं है, इवन देन करंट इज फ्लोइंग, इट मींस देयर इज अ फिक्टिशियस सेल व्हिच इज वी कैन इमेजिन कनेक्टेड इन द सर्किट। जैसे आप जानते हैं किसी भी सेल से करंट फ्लो करता है या बैटरी की वजह से करंट फ्लो करता है, तो इसमें हम एक इमेजिन कर सकते हैं, फिक्टिशियस मींस इमेजिनरी, काल्पनिक इमेजिनरी बैटरी इसमें लगी हुई है, जिसकी ये सोर्स ऑफ ईएमएफ लगा हुआ है, जिसकी वजह से ये करंट फ्लो करता है। तो बच्चों, दिस इज ए वे टू फाइंड द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट इन ए सर्किट। एंड विच लॉ वी हैव यूज्ड, वी हैव यूज्ड द लॉ, लेंज लॉ, टू फाइंड द डायरेक्शन। डायरेक्शन निकालने के लिए हमने लेंज लॉ को बहुत अच्छी तरह से सिंप्लीफाई किया। अब चलिए, अब लेंज लॉ ने देखिए एक बहुत अच्छी चीज और हम इससे एक्सप्लेन करते हैं लेंज लॉ से, लेंज लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। In the previous video, I asked you, it seems that there is a violation of conservation of energy. Lenz law and conservation of energy. Conservation of energy. कहाँ से एनर्जी क्रिएट हो गई, आपने तो पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट सीम्स दैट इट अपीयर्स दैट एनर्जी इज क्रिएटेड इन दिस। इसमें भी करंट डेवलप हो गया, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेवलप हो गई, इसमें भी इलेक्ट्रिक एनर्जी डेवलप हो गई है, जबकि इसमें हमने कोई डायरेक्ट चेंज नहीं किया है, इसमें भी कोई डायरेक्ट चेंज नहीं किया है। दोनों केसेस में मैग्नेट को नियर और अवे से मूव कराया है, तो हम जो भी चेंज कर रहे हैं वो नेबर में कर रहे हैं, इसी वजह से इसको इंड्यूस्ड कहते हैं। This is the reason why it is called induced. I have already spoken in the last lecture also. तो इसमें induced थी हमको। अब बताइए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इस पे काफी टाइम तक सोचा गया, लेंज इसमें फेराडे ने एक्सप्लेन करके बताया कि ऐसा क्यों हो सकता है, कहाँ से ये एनर्जी आ सकती है। तो देखिए, जैसे हम मैकेनिकल एनर्जी, सिंपल सा एग्जांपल लो, ये अगर ग्राउंड पे रखा हुआ है, मानकर हम ग्राउंड से साइड तक रेज करते हैं, यहाँ रखा हुआ है साइड तक रेज करते हैं, ठीक है, तो हमें ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, और जब ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करेंगे तो किस में स्टोर होगा, एनर्जी में स्टोर होगा। उस एनर्जी को क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो एनर्जी आती किससे, वर्क से आती है, और यहाँ कौन से वर्क से आई, मैकेनिकल वर्क से आई, या किसी दूसरी फॉर्म से भी आ सकती थी एनर्जी। जरा इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ अप्लाई करना बच्चों। देखिए, जब नॉर्थ पोल, बहुत ध्यान से समझना, नॉर्थ पोल अप्रोच करता है कॉइल को, तो अप्रोचिंग एंड पे कौन सी पोलरिटी डेवलप होती है, नॉर्थ पोलरिटी डेवलप होती है। नॉर्थ पोलरिटी का क्या करती है, रिपेल करेगी, बट सिमिलर पोल है, हमेशा रिपेल करेंगे, और जब रिपेल करेगी, ये नॉर्थ पोलरिटी है, आप इधर से लेके आ रहे हैं और इस पे नॉर्थ पोलरिटी डेवलप हुई है, तो दोनों रिपेल करेंगे, एंड फर्दर यू आर मूविंग दिस मैग्नेट टुवर्ड द कॉइल अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स। तो दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स है, फिर भी आप इसको मूव करा रहे हैं मैग्नेट को, मींस सम वर्क इज टू बी डन टू मूव द मैग्नेट अगेंस्ट दिस रिपल्सिव फोर्स, एंड दिस मैकेनिकल वर्क डन appears in the form of electric energy in the coil. तो coil में इलेक्ट्रिक एनर्जी कहाँ से आई, इट इज कन्वर्टेड फ्रॉम मैकेनिकल वर्क टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। अगर ये कोई coil थी, इस coil को अगर आप ऐसे मान रहे हो, तो मैग्नेट को आप ऐसे मान लीजिए, ऐसे जा रहा है मैग्नेट, अगर इसको ले रहे हैं तो ऐसे ले लीजिए। जब इधर से नॉर्थ पोल आएगा, तो नॉर्थ पोल के मूव करने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर नॉर्थ पोलरिटी डेवलप होगी। नॉर्थ पोलरिटी का क्या करेगी, अपोज करेगी, रिपेलिंग फोर्स लगेगा, और रिपेलिंग फोर्स लगने की वजह से क्या होगा, इसमें वर्क करना पड़ेगा। अगेंस्ट दिस रिपेलिंग फोर्स सम वर्क इज टू बी डन, एंड दिस वर्क अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन दिस कार। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण हमने ढूंढ लिया है कि कैसे ये एनर्जी डेवलप होती है। दिस एनर्जी इज डेवलप्ड ड्यू टू द मैकेनिकल वर्क डन। और ऐसी जरा यहाँ देखिए,
यहाँ जब दूर लेके जा रहे हैं तो कौन सा पोल बनना है, साउथ पोल बनना है। साउथ नॉर्थ को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्टिव फोर्स के अगेंस्ट आप मूव करा रहे हैं, और जब अट्रैक्टिव फोर्स के अगेंस्ट मूव करा रहे हैं तो अगेन सम वर्क इज डन अगेंस्ट द मैकेनिकल अगेंस्ट द अट्रैक्टिव फोर्स, एंड दिस मैकेनिकल वर्क डन अगेन appears in the form of electric energy and which produces the induced current। ये कारण बना। तो जैसे हमने ग्राउंड से किसी बॉडी को उठाया था, अट्रैक्टिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क हुआ, वही पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हुआ। ऐसे ही यहाँ पर जब हम दूर लेके जाते हैं तो अट्रैक्टिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क होगा, which will be converted into किसमें, मैकेनिक इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। So work is converted into electric energy on the basis of Lenz law. We can explain it. The Lenz law obeys the conservation of energy. All right. तो इसमें वायलेशन नहीं हुआ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को आप क्या करते हैं, ओबे करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट हो गया। इसमें फैराडेज लॉज, लेंज लॉ, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये सारी चीजें हमने एक्सप्लेन कर दी हैं। और इस मैग्नेट से हमने ये भी इस लॉ से फाइंड कर लिया, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन विच केस। कोई भी केस ले लीजिए, साउथ पोल का लेंगे तो उसमें भी बहुत आसान है। चलिए एक और बता देते हैं, अगर हम यहाँ से ले, चलिए हम यहाँ से बताना चाहते हैं, और ये कौन से वाला पोल है, ये लीजिए। अब इस बार हमने साउथ पोल कर दिया, और ये कौन सा पोल ले लिया, नॉर्थ पोल है। बताइए क्या डायरेक्शन होगी अगर आपसे पूछा जाए। एग्जाम में यही क्वेश्चन देता है कि इसमें प्रेडिक्ट द डायरेक्शन इन दिस स्क्वायर, क्या डायरेक्शन होगी, प्रेडिक्ट कीजिए। अब देखो, जब साउथ पोल इधर जाएगा, मूव करेगा, तो कॉज क्या हुआ, मोशन ऑफ द मैग्नेट। किस तरह का मोशन है, साउथ पोल इज अप्रोचिंग द कॉइल, एंड व्हेन साउथ पोल इज अप्रोचिंग द कॉइल, व्हिच पोल विल बी डेवलप, साउथ, बिकॉज़ साउथ कैन repel the south pole, and when south polarity will be developed on the approaching end, then which kind of current is there, clockwise current will be there, so it's very easy to find that। तो यहाँ भी देखिए, अगर साउथ पोल अप्रोच करेगा कॉइल को तो कौन सा पोल बनेगा, कौन सा पोल डेवलप हो जाएगा, साउथ पोल डेवलप हो जाएगा। जरा इस वाले केस को देखते हैं, अगर यहाँ पर आपका साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है और इसको अभी ले जाए, then what will happen, अगेन EMF will be induced in it। और जब साउथ पोल दूर जा रहा है तो कौन सी पोलरिटी डेवलप होगी, नॉर्थ पोलरिटी। क्यों, दूर जाने का अपोज कब कर सकते हैं, जब अट्रैक्ट करें। तो साउथ पोल किसको अट्रैक्ट करेगा, नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ कौन सी पोलरिटी डेवलप होगी, नॉर्थ होगी। तो ये नॉर्थ पोल साउथ को अट्रैक्ट करेगा, और जब साउथ पोल दूर जाएगा तो कॉज क्या है, मोशन ऑफ साउथ पोल अवे फ्रॉम द कॉइल। तो इसको अट्रैक्ट कौन करेगा, अपोज कौन का, अपोज का मतलब अट्रैक्टिव फोर्स करना चाहिए। विच पोलरिटी विल बी डेवलप्ड, नॉर्थ पोलरिटी विल बी डेवलप्ड। So either north pole or south pole is moving either away or towards the magnet. You can predict the direction of induced current on the basis of this Lenz law। और क्या लेंज लॉ बताया, इट ऑलवेज अपोजेस द कॉज ड्यू टू विच इज डेवलप, जिस वजह से डेवलप हुआ, जिस कारण से डेवलप हुआ, उसी का क्या कर देना, अपोज कर देना। अगर किसी ने किसी इंसान की मदद की, किसी एक इंसान ने, उनकी वजह से वो बड़ा इंसान बना, और बड़ा बनने के बाद वो उन्हीं का अपोज करना स्टार्ट कर दे, तो वो क्या माना जाएगा, लेंज लॉ का एक एग्जाम्पल माना जाएगा। पॉलिटिक्स में ऐसा ही होता है, एक पॉलिटिक्स ने अपने किसी छोटे जो पार्टी के जो मेंबर थे उनको बढ़ाया, उनको प्रमोट किया, उनको ऊपर लेके आए, और जैसे ही वो बने, उन्हीं की वजह से बने थे, अब जैसे वो बनेंगे तो अपने से ऊपर वाले को जिन्होंने बनाया था उनका क्या कर दिया, अपोज करना स्टार्ट कर दिया है। तो वो क्या कहलाएगा, लेंज लॉ का एग्जाम्पल माना जा सकता है। वो सोसाइटी में है, पॉलिटिक्स में है, और यहाँ किस में बता रहे हैं, कॉइल में बता रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट फैराडेज लॉज एंड लेंज लॉ, राइट, एंड लेंज लॉ with the conservation of energy। I hope it is clear to everybody, सबको समझ आ गया होगा। चलिए अब इससे आगे का पोर्शन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।